Hello student, in previous video I told you Coulomb's law. Now we have studied what is relative permittivity or dielectric constant. First of all, I will tell you the unit and dimension of epsilon naught. According to Coulomb's law, if there is no medium between the two charges, the force will be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. 1 upon 4 pi epsilon naught is called Coulomb constant. Value of this 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Now we will write epsilon naught 1 upon 4 pi f q1 q2 upon r square. Value of epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space, air or vacuum. Value of this 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. Dimension of epsilon naught, dimension of charge is 80. We get A2 T square. A is a unit of dimension, unit of current. T is a unit of time, जो है unit of T का है. So dimension of charge is 80. Dimension of force ml t minus 2 or dimension of length L2. We get m minus 1 L minus 3 T4 A2. This is dimension of epsilon naught. SI unit of epsilon naught Coulomb square per Newton meter square. Now what will be force when the value of two charges q1 q2 is equal to 1 Coulomb. जब चार्ज की वैल्यू 1 Coulomb है and distance between two charges is 1 meter, the force will be 9 into 10 to the power 9 Newton, which is very large. Coulomb is very large unit of charge. The practical unit of charge are 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 Coulomb and 1 nanocoulomb is equal to 10 to the power minus 9 Coulomb. Now, if there is medium between two charges, यदि चार्ज के बीच में अगर मीडियम है तब फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी. इफ इंस्टेड ऑफ वैक्यूम some dielectric insulator, dielectric is an insulator. We will explain in next video. Dielectric is an insulator like glass, paper, wax. ये आपके क्या है, डायलैक्ट्रिक है. यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दें कि all dielectric is a insulator but all insulator is not dielectric. इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे. तो अगर इसको आप चार्ज के बीच में रखते हैं तो epsilon naught is replaced by epsilon. Then we can write Coulomb force for medium. Force will be, जब आपने डायलैक्ट्रिक रख दिया तो मीडियम में फोर्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन n. यहाँ पे मीडियम मैंने लगा दिया है तो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन
एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मटेरियल मीडियम। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k। व्हाट इज k? k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where k is a dimensionless constant known as dielectric constant और relative permittivity, और इसके अदर नेम है specific inductive capacity of the material, while material is known as dielectric। For water के लिए इसकी वैल्यू है 81, for paper k की वैल्यू 3.5, फॉर इंसुलेटर की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में है। इफ़ वी प्लेस कंडक्टर, वैल्यू ऑफ के इज इनफाइनाइट। नाउ फोर्स विल बी, फोर्स आपका F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब आपका चार्ज के बीच में मीडियम होगा तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन k लिखेंगे। तो k की वैल्यू आपकी क्या होगा, जितना F इज़ प्रोपोर्शनल टू, F इज़ एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन k। k इज़, इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लार्ज, फोर्स विल बी डिक्रीज। k की वैल्यू जो है लार्ज होगी तो फोर्स जो है कम हो जाएगा। और आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू आपको पता होगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये गिवन होगा। और एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वैल्यू आपको रख देंगे। तो चार्ज के बीच में अगर आप मीडियम है तो फोर्स जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। तो नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई पुटेड द टू चार्जेस सिस्टम इन द वाटर, फोर्स हैज़ डिक्रीज 80 टाइम्स। ठीक है, के की वैल्यू जो है वाटर के लिए के की वैल्यू 80 या 81 होती है। तो जब आप इसको चार्ज को पानी के अंदर, मीडियम आपका क्या हो गया, पानी हो गया, तो मीडियम में आपने रखा तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो आपने देखा है कि जब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड ये आपका पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, इसको आप पानी में रखने, पानी में डालने से ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसके आयंस, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयन में ये स्प्लिट कर जाता है। जबकि इनके बीच में जो बाउंडिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वेरी लार्ज होता है, लेकिन पानी में डालने पर ये स्प्लिट कर जाता है, इसका फोर्स वीक हो जाता है ड्यू टू द वैल्यू ऑफ के के कारण। वाटर की डाइलेक्ट्रिक जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि इसके फोर्स को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ओके, तो मीडियम में फोर्स जो है आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मीडियम में फोर्स Fm इज इक्वल टू Fa अपॉन k। ए क्या है, एयर की वैल्यू है। जब आपका फोर्स जो है एयर में, चार्ज जब आपकी एयर की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में अपॉन k, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू डायमेंशन लेस है, ये एक रेशियो है, यूनिट लेस भी है। ओके, थैंक यू सो मच।